Hello friends, today we are in English spoken training in Block Simga. Basically, English is a foreign language, but its acceptability has made it an international communication language. We know how to read and write English, but hesitate to speak it. So first, stop hesitating. Start small conversations. This is a language which will flow easily and will become a medium of communication. Also, our student will get the benefit of multilingual teaching if we conduct hesitate-free environment in classroom. Chhattisgarh School Education Department has organized a 5-day English spoken training for primary level teachers so that a positive environment can be created among the primary level teachers reading English subject and they can feel comfortable in classroom teaching. In this sequence, BRCC Sri D.S. Thakur inaugurated a 5-day training program in Block Simga. In his address, he congratulated all the participants and asked them to take the training seriously and implement in the schools. पहले दिन के प्रशिक्षण को 5 सेशन में डिवाइड किया गया था। पहला सेशन प्रतिभागियों का रजिस्ट्रेशन, दूसरा फाइंड योर ट्विन्स, यह एक आइस ब्रेकिंग सेशन था। तीसरा लैंग्वेज गेम्स, गेसिंग गेम्स इन स्मॉल ग्रुप्स। चौथा इंग्लिश स्पीकिंग नॉन स्टॉप, सेंस और नॉनसेंस। पांचवा और अंतिम सेशन था डिस्क्रिप्शन ऑफ ब्लेंड क्रिएचर्स क्रिएटेड बाय। I teach in a public primary school grocery. I am creating work with my children in 500% give my student. Also, my school is museum. Established in the Ken Kilona Sangralaya in my school, so broadly CG first museum in the my school. So welcome to all of the teacher in the my school. Visit to my school and use the FLN based activity and all my school based FLN activity in the Jadui Pitara and also my school TLM built in the school in the student in myself so 500 so many work experience in the my So I am a trainer in the many governments program in the school education field. My hobby is traveling and the creative work with my life. Education with my life also creative work continue in all time. So my dream is the 12 Jyotirling darshan. So 7 Jyotirling darshan in completed. So सावन का महीना है तो जय भोलेनाथ जी और आगे भी करूँगी और so शक्तिपीठ ज्योतिर्लिंग स्थापित शक्तिपीठ मैनी so 51 शक्तिपीठ my dream is to see. So Kedarnath is so beautiful place and Charo Dham. So continue and I am traveling. So CCRT training in the Assam Guwahati, Meghalaya. My experience is so good and
I think new training is the good experience in the ourself and the student. So the spoken English is training is the too good. So my English is so weak. I think develop in the my English too. So thank you so much and sir, Sita ma'am, Prakash sir. Next time is too good English speaking. Thank you. अब हम बात करते हैं सेशन वार एक्टिविटीज़ की। फाइंड द ट्विन्स एक्टिविटीज़। यह एक ऐसा एक्टिविटी था जिसमें एक छोटा ग्रुप बना हुआ था और उस ग्रुप में हमें एक दूसरे से बातचीत करनी थी और बातचीत करने के बाद हमें उस ग्रुप में अपने जैसे सिमिलर पर्सन को आइडेंटिफाई करना था और आइडेंटिफाई करके एक ट्विन बनाना था। द पेयर विच फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ सिमिलरिटीज विल बी डिक्लेयर्ड द ट्विन इन द ग्रुप। उसके बाद एक हमें स्क्रॉल says labeled the twin will be given the both person in this pair। तो ये एक्टिविटी ग्रुप में कराया गया, ट्विन को ढूंढा गया और ट्विन को ढूंढने के बाद एक स्क्रॉल पहनाया गया और एक क्राउन भी इसमें पहनाया गया। इसके बाद था गेसिंग गेम। ये एक्टिविटी था। इस एक्टिविटी का तात्पर्य था यूजिंग लैंग्वेज फॉर गेसिंग। गेस करने के लिए हमें इंग्लिश शब्दों का उपयोग करना था और दूसरा था ब्रेकिंग द पर्सनल एंड सोशल बैरियर्स टू कम्युनिकेट। ये एक्टिविटी का उद्देश्य था। इस एक्टिविटी में द फैसिलिटेटर्स विल थिंक इन द नेम ऑफ अ फेमस पर्सन। द पार्टिसिपेंट्स हैव टू गेस who the person is by asking yes or no type question. They may ask question like is that a male, is she an Indian, it is। ये एक्टिविटी इसमें कराया गया और इस एक्टिविटी का जो उद्देश्य था वो था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी शब्दों का उपयोग करें और जो बैरियर्स हैं और जो हमारे अंदर का झिझक है वो दूर हो सके। इस एक्टिविटी में सारे पार्टिसिपेंट्स को मौका दिया गया कि वे अपनी बातों को खोल के रख सकें। रेखा इसके बाद की जो एक्टिविटी थी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी थी। स्पीकिंग नॉन स्टॉप इंग्लिश, सेंस और नॉनसेंस। इसमें प्रतिभागियों को अपनी बातों को लगातार 3 मिनट तक बोलना था। वो जिस भी विषय पर बोले, चाहे वो अपने बारे में बोले, अपने स्कूल के बारे में बोले, अपने कार्यों के बारे में बोले या किसी भी फील्ड में बोले, उनको लगातार 3 मिनट तक नॉन स्टॉप रुके उन चीज़ों को बोलना था, चाहे आप सही बोलें या गलत बोलें, लेकिन आपको इंग्लिश में ही बोलना था। काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी था। इस एक्टिविटी का उद्देश्य था कि हमारे अंदर जो इंग्लिश को लेकर डर है, झिझक है, भय है, वो दूर हो जाए। इसके लिए एक इस एक्टिविटी में मास्टर ट्रेनर्स द्वारा एंथोनी गंसाल्विस, माय नेम इज एंथोनी गंसाल्विस सॉन्ग को भी दिखाया गया, जिसमें एक्टर अमिताभ बच्चन के द्वारा नॉन स्टॉप इंग्लिश
I think बोला जाता है, नॉनसेंस इंग्लिश बोला जाता है, उसे दिखाया गया ताकि जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो उससे इंस्पायर हो सके और इंस्पायर होकर नॉन स्टॉप इंग्लिश बोलने का प्रयास कर सकें। यहाँ जो पार्टिसिपेंट्स हैं स्पीक बिफोर द ग्रुप फॉर एटलीस्ट 3 minutes. They may change the topic in every sentence. There may be some incomplete sentences. They should try not to have any pause in between. इसके बाद एक्टिविटी थी ब्लेंड क्रिएचर। जब वेजिटेरियन रहता है नॉन वेजिटेरियन एक्टिविटी में प्रतिभागियों को अलग अलग 3 शब्द दिए गए थे। हर ग्रुप में 3 शब्द दिए गए थे और उस शब्द के आधार पर उन्हें एक प्रेजेंटेशन तैयार करना था और प्रेजेंटेशन को इंग्लिश में प्रेजेंट करना था। एवरी ग्रुप टू क्रिएट एन imaginary creature by blending 2 creatures and name it like horse and zebra, cobra, like that. The group will decide everything about the new creature, like its physical features, what it eats, where it lives, like. The new creature will be presented one by one. The presenter will only tell the name of the creature and not the details of the creature. The details of the creature will be known by asking questions like that. और इस गतिविधि में सारे प्रतिभागियों ने स्वप्रेरित होकर भाग लिया और अपने अंदर इंग्लिश को लेके जो एक झिझक थी या हेजिटेशन था उसे दूर करने का प्रयास किया। यह प्रशिक्षण विकास खंड में 3 स्थानों पर आयोजित किया गया था। पहला BRC ऑफिस, दूसरा स्वामी आत्मानंद विद्यालय में और तीसरा जो था वो TLC सिंगर में आयोजित किया गया था। आप देख सकते हैं लगभग सारे शिक्षकों ने प्रेजेंटेशन को इंग्लिश में ही प्रस्तुत किया। उन्हें जैसा आता था, जो वो व्यक्त कर पा रहे थे, जो जैसा वो बोल पा रहे थे, उन्होंने बोलने का प्रयास किया और अपने अंदर जो झिझक था इंग्लिश को लेकर उन्हें दूर करने का प्रयास किया। ये प्रशिक्षण का पहला दिन था। पहले ही दिन सारे पार्टिसिपेंट्स ने अपने बैरियर को हटा दिया और खुलकर इस प्रशिक्षण में भाग लिया। अभी इस प्रशिक्षण के 4 दिन और हैं। 4 दिन के बाद 5वें दिन प्रशिक्षण समाप्त होगा। शिक्षक स्कूलों में जाएंगे। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि वो अच्छा अनुभव के अंदर इंग्लिश को लेकर जो धारणाएं दूर होंगी। स्कूल में बच्चों को अच्छा इन्वायरमेंट देंगे स्पोकन इंग्लिश के लिए, एक अच्छा इन्वायरमेंट देंगे अंग्रेजी भाषा को सीखने के लिए। धन्यवाद।